All right. Recording is on. रिकॉर्डिंग चालू हो गई है. Anybody has any more questions before we go to the next chapter? किसी के पास सवाल है अगले पार्ट में जाने से पहले आप लोग पूछ सकते हैं. One minute, just adjust this. I'll just adjust. Let it be? Okay, questions? माइक ले लीजिए. Mike Lelije, you want her to ask the question, she wants you to ask the question. बैठकर पूछ सकते हैं आप. Oh, Asking why should we take baptism only in the water? Why can't other way? all right. If any of you online students, if you lose connection, please connect again. Maybe Devraj, you might lose connection. Please connect back again. ऑनलाइन में जुड़े छात्रों में से कोई भी अपना हमारे साथ जो जुड़े हैं आप हमसे कट सकते हैं. देवराज आप कृपया फिर से जुड़े. Okay. Your question is? सर मेरा ये क्वेश्चन है, बपतिस्मा पानी में ही क्यों लेना चाहिए, लिया जाता है? What do you want to be baptized in? आपको किस चीज से बपतिस्मा लेना है? So, it's a good question. Why do we have to be baptized? Why water? Why not milk? Why not, I don't know, oil? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है. क्यों पानी में ही, दूध में नहीं, तेल में नहीं? Why did, we see it in the Bible. John the Baptist was the first person coming and he was baptizing people in the River Jordan. ये इसलिए कि हम बाइबल में देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो इस पहला व्यक्ति है यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था. The Bible doesn't necessarily state a reason, but the answer may be very obvious because water was easily available. If he said you have to be baptized in oil, that would be a big problem, right? So where will you go find so much oil to keep baptizing people? So I think it's more a practical thing because water was plentifully available. कारण नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि पानी आसानी से मिल जाती है, बहुत मिल जाती है. पानी से बपतिस्मा देना आसान है. अगर तेल से बोले तो इतना सारा तेल को ढूंढना ये संभव नहीं है करना, तो हो सकता है ये कारण है. So just a practical thing. एक व्यवहारिक चीज है. Right? And God instituted it for us. ये परमेश्वर ने ही इसका स्थापित किया हम सबके लिए. सर मैं इस बुक को पढ़ रही थी तो इसमें था कि बैठ के पूछ सकते हैं. बैठ के पूछिए. बैठ जाइए. इसमें शाऊल के बारे में था कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आकर उसे सताती थी. तो मैंने पढ़ा तो पता चला कि परमेश्वर की ओर से वो दुष्ट आत्मा नहीं थी. जैसे यीशु मसीह ने एग्जाम्पल में दिया है कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, नहीं तो उसका राज्य बिगड़ जाएगा. तो जब पढ़ा तो ये भी पता चला कि इस बुक को शमूएल पुस्तक को शमूएल ने और भी नबियों ने लिखा. तो ये उनका एक्सपीरियंस था कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आकर उसको सताने लगी. उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, मतलब क्या ये उनका एक्सपीरियंस था, उनका अनुभव था कि शायद परमेश्वर से की ओर से दुष्ट आत्मा आकर शाऊल को सता रही होगी क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी? Sorry, what is the question? Question is that about King Saul. King Saul, evil spirit from God came and troubled him. And then what was after that? She's saying it is that prophet's experience he wrote, or what? Why he wrote like this? Oh, maybe the question is, why does it say an evil spirit from God? Is that the question? राइटर ने ऐसा क्यों लिखा? Why he wrote like this? Is it prophets thinking? Why did the writer write that way as a evil spirit from God? So
They wrote it as they saw and as they understood it. उन्होंने इसलिए ऐसा लिखा कि उन्होंने जो देखा और जैसे उन्होंने समझा वैसे उसको लिखे हैं। The Bible records statements that people made the way they said it. बाइबल ऐसा बताती है कि उस वाक्यांश जो है वो इस प्रकार जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही हमें कहना है। No, the Bible records statements made by people the way they said it, whether it was right or wrong. बाइबल जो हमें ऐसे लिखी है जिनके द्वारा लिखी गई है वो जैसे उन्होंने जैसा कहना चाहा लिखे वो सही है गलत है इस तरीके से नहीं। The Bible also records the actions of people, whatever they did, good or bad. और बाइबल ये भी है लोगों की जो कार्य है वो सही है गलत है उसको भी लिखी है। Right? So for example, when David made mistakes, it's recorded there. He did wrong things. उदाहरण के लिए दाऊद ने जब गलती किया तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दाऊद ने गलती किया है। So in many places, it's recording what the people understood. तो कई सारी जगह में जो है लोगों ने जो समझा है उसी को लिखा है। For example, the Bible is saying in Job chapters 1 and 2, it says, Satan went and he smote Job, but Job didn't know it was Satan who was doing it. तो हम अय्यूब के किताब में भी पढ़ते हैं कि ऐसा बताया है कि शैतान जो है अय्यूब पर परेशानी डाल रहा है लेकिन अय्यूब को इस बात के बारे में पता नहीं थी। So let's go to Job. We'll look at it and then I'll answer your question. आइए हम अय्यूब के पुस्तक में जाएं उसको देखें फिर उसके बाद हम आपका जवाब देंगे। Job chapter 2. अय्यूब अध्याय 2। Let's look at Job chapter 2, verse 7. अय्यूब दूसरा अध्याय का वचन 7। And we'll also read a verse. And verse 10. Job 2, verses 7 and 10. अय्यूब दूसरा अध्याय का 7वां और 10वां वचन। Job 2, verse 7 and 10, verses 7 and 10. तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब की पांव को तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। एंड 10वां वचन। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इस सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। Okay. Verse 7 says, Satan went and smote Job. और यहाँ वचन बता रहा है कि शैतान जाकर अय्यूब पर पांव सिर से लेकर पांव तक फोड़े लाए करके। Right? So who was causing all this pain and sickness on Job? अय्यूब पर ये सारी बीमारी और तकलीफ कौन डाल रहा है? Satan. But in शैतान। verse 10, what is Job thinking? Job is thinking, God is doing this to me. लेकिन 10वां वचन में अय्यूब को क्या सोच रहा है? ये सारी बातें जो है परमेश्वर मेरे ऊपर कर रहा है। But who's actually doing it? लेकिन असल में ये कौन कर रहा है? Satan. शैतान कर रहा है। But Job is saying, God is giving, God is taking away. But it is not God who's taking away. It's Satan who's doing that. और अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ले रहा है लेकिन ये परमेश्वर नहीं कर रहा है शैतान कर रहा है। So the point is, whatever people have said, it's recorded here. Like whatever Job said, it's recorded. बात ये है कि जो लोगों ने जो भी बातें कहे हैं उसे वैसे ही लिखा है यहाँ पर। But it doesn't mean that Job was saying the right thing in terms of what was happening. इसके मतलब ये नहीं कि जो कुछ हो रहा था उसके बारे में अय्यूब बिल्कुल सही कह रहा है। But he didn't curse God. That's a good thing. लेकिन उसने परमेश्वर को श्रापित नहीं किया, वो बहुत ही अच्छी बात है। And he was just thinking, God gave, God is taking away. But he didn't know actually that Satan was doing this. वो बताया कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, क्योंकि असल में वो नहीं जान रहा था कि वो शैतान ने किया है। Right? So we will find many phrases like this that as recording what people understood at that time, what they thought. इसलिए जो है बाइबल में लिखा वाला है वो लिखा गया, वो जैसे समझते थे उसके अनुसार वो उन्होंने बताया। So going back to Saul's case, they thought, okay, this evil spirit was from God. But we know when you look at the entirety of Scripture, God doesn't have evil spirits sitting in heaven. तो यहाँ वचन लिखा है कि परमेश्वर के ओर से दुष्ट आत्मा भेजी गई, लेकिन हम
बाइबल के सारे वचनों को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर के पास स्वर्ग में कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। right? So it's written there as though the way they understood, oh, an evil spirit came from God, but it wasn't from God. जिस प्रकार से वो लिखने वाले ने समझा था उस प्रकार से उसने लिखा है, लेकिन वो परमेश्वर के ओर से नहीं थी। Same thing like Job. Job thought God was taking away, but God was not taking away. जैसे अय्यूब ने बोला कि परमेश्वर ने उठा लिया, लेकिन परमेश्वर ने लिया। Are we understanding? Right? Okay. समझ गए आप? Okay. All right. माइक Okay. Let's ask questions in related to what we are studying. Yes. Who raised the hand? Suraj. Okay. Suraj, please go ahead. आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Yeah, go ahead. मेरी आवाज आ रही है सर? आ Yes, रही है, आ रही है। सर मेरा एक सवाल था, जैसे कि कल्चर के अकॉर्डिंग हम बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, तो हमारे इधर क्या नाम बोलते हैं, जैसे मृत्यु का समय होता है, शादी का समय होता है, तो मृत्यु के समय में ऐसा होता है कि यहाँ पर अब दफनाया नहीं जाता है, हमारे हिमाचल में उस तरीके से नहीं है। तो जैसा अभी तक हम करते आए कि हम जलाते हैं, तो पीछे कुछ पास्टर्स लोग आए थे, तो उन्होंने बोला कि हम अगर जला रहे हैं तो ये परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि हमें दफन करना बहुत जरूरी है। और दूसरा सवाल है, कई बार शादी वगैरह होता है तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे कल्चर है जो कुछ बाइबल के मतलब विरोध में भी है, कुछ बातें बाइबल से बाहर भी, जैसे कल्चर के अकॉर्डिंग ना सर। तो इन चीजों को कैसे फेस कर सकते हैं, हम कैसे इन चीजों का सामना करें सर? Okay. मृत्यु के बारे में तो आपने बोला, समझ गया। शादी के बारे में आप कुछ नहीं बोले थे, वो समझ में नहीं आया। ऐसा होता है ना सर, यहाँ क्रिश्चियन मैरिज नहीं होती है, तो उदाहरण के लिए हमें ये चैलेंज होता है कि तुम मैरिज तो प्रार्थना करके कर रहे हो, लेकिन जो हमारा कल्चर में हम ड्रेस वगैरह यूज करते हैं वो हमारा हिमाचली यूज कर रहे हो, तो ऐसे क्यों दो तरीके से कर रहे हो? या तो पूरा उस तरीके से करो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है सर हमारे पास। So he's talking about the when in marriage they're wearing their cultural clothes Yes. and The people getting. yes, Mary, but people are saying you accepted Jesus. Why are you using our culture? He's Oh. from other Or culture. why they're using? From Ah. different faith he came, Hmm. accepted Jesus. Ah. So one more thing he's asking. First one is Burial. about the burial. Yes. Okay, so the first question about burial, it doesn't matter, what we do with the body. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा शरीर के साथ हम क्या कर रहे हैं, मृत शरीर के साथ। Whether the body is buried, whether it's burnt, or imagine, when people drown in the ocean or some aeroplane is shot, where is the body? We don't know. Right? Ultimately, whether it is buried, whether it is burnt, whether it's drowned in the water, or whether it is, lost somewhere up in the hills, the body is going to become dust. तो ये कल्पना करके देखिए, चाहे क्या पानी में डूब जाए या जलाया जाए, दफनाया जाए, या कहीं जंगल में भी, या कहीं भी शरीर खो जाते, तो उससे कहीं भी खो जाता है, वो जो है धूली बनता है, मिट्टी बनता है। That's what in the book of Genesis, dust you are, to dust you will return. उत्पत्ति की किताब में यही लिखा है, तो मिट्टी है, मिट्टी में ही वापस आएगा। How we return to the dust can happen in so many different ways. तो हम मिट्टी कैसे बनते हैं, वो जो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। We don't have to worry. हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। The good news is we will all receive glorified bodies when the Lord Jesus returns. खुशखबरी है कि हम सबको जो है, जब यीशु मसीह आएंगे, महिमामय शरीर मिलेगा। That time he is not going to go to our grave and look for our body. He is not depending on that. यीशु मसीह जब आएंगे तब जो हमारा कब्र में जाकर हमारा शरीर को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि वो शरीर पर निर्भर नहीं है। Right? He is going to give us by his power. He is going to give all of us glorified bodies in an instant. इसलिए जो है यीशु मसीह जब आएंगे, हम सबको जो है पल भर में जैसे हम देखते हैं कि मतलब पलक झपकने से पहले हमारे लिए जो है महिमामय शरीर मिल जाएगी। So the answer is
it really doesn't matter how, what happens to the body, how it is done, because if you think about it, even believers will die, in so many different ways. तो इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये अंतिम संस्कार जब करते हैं किस प्रकार से किया जाता है। विश्वासियों का भी अलग अलग प्रकार से होता है। Right? The second question is a cultural thing which we are going to study. If people say, okay, you become believers, you can tell them, look, I still belong to this community. I still belong to, this is still culture. So just because you have faith in Jesus doesn't mean we no longer participate in our community or in the food or in the culture from where we grew up. तो संस्कृति की बात आती है तो आप मसीह बन गए, मसीह पर विश्वास ला लिए, इसलिए आप संस्कृति से अलग हो गए, अपना संस्कार से नहीं, ऐसे नहीं, आप उनके साथ, उस समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं, इस बात को आप दर्शा सकते हैं। So, so in marriage, yeah, we are praying to Jesus, but we will be, wearing maybe North Indian clothes or South Indian clothes or whatever clothes that you're comfortable, you wear it. It's not about the clothes, it's about your faith in Jesus. शादी के समय में जो भी कपड़े पहनते हैं आप, जिससे आपको आराम है, जो आप पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, इसलिए हम कपड़े क्या पहन रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। So we can explain. Is that your question? I mean, is that? आपका सवाल यही था? यस सर, जैसे कुछ रिचुअल्स भी होते हैं ना मैम, रिचुअल्स भी, जैसे कि कई बार यहाँ का कुछ, जैसे गेट पे वेलकम होता है, तो पर वो ये कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से करो ना, ये तो हमारा, मतलब उदाहरण के लिए देखा जाए तो हिंदू धर्म के अनुसार है सारा ही। तो जैसे वेलकम करने का तरीका होता है, तो हम कैसे उस चीज को फेस करें, कैसे बताएं उन चीज को? बहुत सारी चीजें जब हम वेलकम के टाइम हो गया, कुछ भी अभी तो यहाँ के अकॉर्डिंग ही चलता है ना सारा ही। तो वो बोलते हैं ये तो हमने सब शुरू किया है, तो तुम कैसे इस चीज को फिर अपना सकते हैं अगर तुमने इस तरीके से यीशु मसीह को अपना लिया है, या तो पूरा ही सब कुछ तुम चेंज कर दो। Welcoming the bride and groom, no, that is also according to this culture. Or they're That's different, practicing some They are things allowing like- us to practice because you become believer. Uh-huh. Don't use Okay. our Suraj, I don't know everything about what you do in Himachal, but as long as it is not religious, like, it is just a cultural thing, it is fine for us to do it. In different cultures, they welcome people differently or do certain things. It is fine. It is not a religious thing. It's just a cultural thing. ये कोई धर्म की बात नहीं है, सिर्फ संस्कृति की बात है। अगर जब तक धर्म के साथ ये नहीं जुड़ता है, संस्कृति की बात है, आप कर सकते हैं। Yeah. So you don't have to. I hope I answered your question. तो Let's take, कोई और सवाल? चेक हेलो सर, एक मेरा 2 सवाल है। एक, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और के बाद उसे चर्च में बैप्टिज्म दिया जाता है, वाटर बैप्टिज्म के बाद उसका जो पुराना मनुष्यत्व है वो ऐसे ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वाटर बैप्टिज्म नहीं मिलता है, लेकिन वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसका जो पुराना मनुष्यत्व था उसको भी उसने यीशु मसीह के द्वारा उसको हटाया। तो दोनों में से स्वर्ग, मतलब जैसा कि वचन जैसा कहता है कि बिना बपतिस्म का हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, तो दोनों में से कौन सही है जाना? नहीं, एक सवाल का तो बिना बपतिस्मा का स्वर्ग नहीं जा सकते, वो तो नहीं बाइबल बताती है। Sorry, what does Without it say? baptism you can't go to heaven. So the Bible doesn't say that. The Bible doesn't say you can't go to heaven without baptism. We have classic example of the thief next to Jesus. Jesus said, "You'll be with me in paradise." He wasn't baptized, but he went to heaven. बट right? दोनों में से सर, दोनों जो व्यक्ति है, तो मतलब जिसका पुराना मनुष्य तो अभी तक नहीं गया लेकिन वो उसने बपतिस्म ले लिया, और जो बपतिस्म नहीं लिया है उसका पुराना मनुष्य तो उसने अपना धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पुराना मनुष्य तो खत्म किया। तो दोनों में से मतलब लाभ किसका All right, हुआ? Okay, so
saying one person to baptism, but his life didn't change. His life didn't change. And one person didn't to baptism, but his life changed in Christ. Yes. Yes. What is the difference? Who is the right? Okay. So if both have believed in the Lord Jesus Christ, they are saved. जब यीशु मसीह में दोनों ने विश्वास किया मतलब उनका उद्धार हुआ है. Right? The Bible says Ephesians 2 verse 8 and 9. By grace you are saved through faith, not by works. So nobody can boast. तो इफिसियों 2 अध्याय का 8वां वचन बताता है कि आप किसी कार्य के द्वारा ने विश्वास से अनुग्रह से ही आपका उद्धार हुआ है. इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण उनका उद्धार हुआ है. Right? So we are not saved because we have good works. We are saved by grace through faith. हम कह रहे हैं कि अच्छे कामों के कारण नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है. So what is the difference in the example you gave? What is the difference? One person will have a good testimony. The other person will have a bad testimony. People look at them and say, his life testimony is not glorifying Jesus. कि आप जो बता रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति का जो जीवन बदल गया है उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है और जो नहीं कर रहा है उसके कारण जो है परमेश्वर की महिमा नहीं हो पा रही है. और एक लास्ट सर बपतिस्म लेने से पहले क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्म मिल सकता है? और पवित्र आत्मा का बपतिस्म अगर मिलता है मतलब बपतिस्म लेने से वाटर बपतिस्म लेने से पहले पवित्र आत्मा का जो आग का जो बपतिस्म है वो मिल सकता है? और या फिर और एक क्वेश्चन है कि पवित्र आत्मा का उसे गिफ्ट जो है अन्य भाषाएं बोलना और भी बहुत सारे हैं, क्या उसको वो प्राप्त हो सकते हैं? Answer is yes. इसका जवाब है हाँ. People can be baptized in the Holy Spirit, receive the Holy Spirit and the gifts, and then after that be baptized in water. लोग जो है पहले जो है पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पा सकते हैं, वरदान भी मिल सकते हैं, उसके बाद वो जल का बपतिस्मा ले सकते हैं. We have two examples in the book of Acts. हमारा प्रेरितों के काम में हमारे पास 2 उदाहरण हैं. One is the Apostle Paul in Acts chapter 9. एक जो है प्रेरित पौलुस है, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में. When Ananias came and prayed for him, जब अननिया आया और पौलुस के लिए प्रार्थना किया, he said, be healed and be filled with the Spirit. और अननिया ने कहा कि चंगा हो जा और आत्मा से भर जा. So Paul was healed and full of the Spirit. और पौलुस जो है चंगा हो गया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया. And after that he was baptized in water. और उसके बाद जो है पौलुस का जल में बपतिस्मा हुआ. This is in Acts chapter 9 and verse 17 to 17 and 18. तो ये जो है प्रेरितों के काम 9वां अध्याय का 17 और 18 वचन है. So Paul, he received his sight, he was filled with the Spirit, and then he was baptized in water. पौलुस को जो है दृष्टि मिली और पवित्र आत्मा से भरा, उसके बाद जल से उसका बपतिस्मा हुआ. One more example is in Acts chapter 10 in the house of Cornelius. और एक उदाहरण प्रेरितों के काम 10वां अध्याय कुरनेलियुस के घर पर. This is verses 44 to 48. ये जो है 44 से लेकर 48 तक के वचन में. Acts 10, 44 to 48. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय के 44 से लेकर 48 वचन तक. So Peter was preaching. पतरस प्रचार कर रहा है. The Holy Spirit came on them. They were baptized in the Holy Spirit. They started praying in tongues. पवित्र आत्मा उन पर आई और वे जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए. After that, they were baptized in water. उसके बाद वे जो है पानी से बपतिस्मा दिए गए उन्हें. Right? So God can work in different ways. He can baptize people in the Holy Spirit and then they are baptized in water. Or sometimes they are baptized in water first and then they receive the Holy Spirit. Both ways are fine. परमेश्वर जो है दोनों तरीके से काम कर सकते हैं. पहले पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे सकते हैं, उसके बाद जल का बपतिस्मा ले सकते हैं, या तो पहले जल का बपतिस्मा लिए फिर उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक बपतिस्मा भी ले होता है. Question? सवाल? Yes, Pastor, one question. Sorry. All right. Okay. We will take this and then come there. Yes, Philip. Yes, I just want to know this. Infant baptism is biblical? So
infant baptism is wrong. It's not in the Bible. बच्चों को बपतिस्मा देना सही है क्या, इनका सवाल है, लेकिन बच्चों का बपतिस्मा देना बाइबल के आधार पर सही नहीं है। Because one of the requirements to be baptized is repent and be baptized. बपतिस्मा लेने का एक जो जरूरत है, पहले मन फिराएं, उसके बाद बपतिस्मा लें। Right? So water baptism is a sign of repentance. That means the person has repented, they've turned to God, then they come and are baptized in water. जल का बपतिस्मा ये चिन्ह है कि वो व्यक्ति जो है मन फिरा है, पश्चाताप किया है, उसके बाद जो है वो जल का बपतिस्मा लेता है। So the baby, cannot do this. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। Right? The baby doesn't know how to repent. So what baptism does not mean anything. वो बच्चे को जो है पश्चाताप क्या करना है पता नहीं है, और जल का बपतिस्मा क्या होता है इसका अर्थ नहीं पता है। Right? So we don't practice that. It's not in the Bible. इसलिए हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं, वो बाइबल में नहीं है। Thank you. Thank you. Thank you. बपतिस्मा लेने का सही समय क्या है? What's the right time to take baptism? Huh? Which is the right time to take baptism? 4 o'clock in the morning. I'm just joking. Whenever you have repented and believed in Jesus, that is the right. After that, you can be baptized. जब भी आप यीशु मसीह पर विश्वास किए तो उसके बाद आपने उद्धार पाया, उसके बाद आप बपतिस्मा ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। अन्य भाषा का वरदान बपतिस्मा लेने के बाद मिलता है कि उससे पहले भी मिल सकता है? आप कहाँ था ये क्वेश्चन? पास्टर साहब अभी अभी इस सवाल का जवाब दिए थे। He asked the same question. Where were you? कि Okay. दोनों तरफ से परमेश्वर करेंगे करके बताए थे। पहला जल का बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सकता है, या तो पहले बपतिस्मा मिलेगा उसके बाद आप जल का बपतिस्मा भी ले सकते हैं। दोनों तरह से परमेश्वर कार्य कर सकते हैं। Right. What were the verses? वचन क्या है? Acts chapter 9, 15, 16, Acts 10, 44 to 48. Yeah? Okay. Anything related to our text? Yes. अभी जो हम पढ़े हैं उसमें My question is about Mark 16, 15 and 16. Yet Jesus said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved. So here, which type of baptism Jesus is telling to his disciple? And pastor, second thing is, अगर हम किसी को मतलब जीसस के बारे में प्रीच कर दे और वो बिलीव करे, इसी के कारण उनका उद्धार है, और अगर हम वाटर बैप्टिज्म ना दे उनको तो क्या वो उद्धार पा सकते हैं? अगर हम सिर्फ वचन प्रचार करें और वाटर बैप्टिज्म ना दे तो क्या वो उद्धार पा सकते हैं? Okay. So I would, we have this book on water baptism. You'll find it over there. हमारे पास जल का बपतिस्मा नामक पुस्तक है, वहां आपको मिलेगा। All right. So, Bharat, we'll get water baptism book from where and give everybody. Okay. All right. So we will give you all of you a copy of the book Water Baptism. Please read it. All your questions on water baptism will be answered. तो आप सबको जो है जल का बपतिस्मा का पुस्तक जो दिया जाएगा, आप सब उसमें से पढ़, बपतिस्मा के सारे जो है उसका जवाब दिया गया है। Okay. Right. We'll have to move forward. प्रेज द लॉर्ड सर, मेरा भी एक सवाल है। Yes. पूछिए। Yes, please. जैसे कि बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद में भी लोग पाप करते हैं, है ना, तो क्या उसकी क्षमा हो सकती है? फिर बपतिस्मा लेने के बाद में गलत काम होता है तो? First John chapter 1 verse 7 and 9. पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 से लेकर 9 तक के वचन। First John chapter 1 verse 7 and 9. पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 और 9वां वचन। Says, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin.
यहाँ बताया कि ज्योति में है तो जैसे वैसे हम ज्योति में है वैसे ही उसके साथ चले, एक दूसरे से सहभागिता रखें, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So water baptism doesn't wash our sins. The blood of Jesus Christ washes our sins. जल से जो हम बपतिस्मा लेते हैं वो हमारे पापों को नहीं धोती है, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है हमें अपने पापों से धोती है। Right? And then verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. और यहाँ 9वां वचन ऐसा बताते हैं कि यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं है, यदि हम अपना पाप को अंगीकार करते हैं तो वो जो है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। So all of us, even after we are baptized in water, we've done wrong things. हम सब भी हमारा जल में बपतिस्मा होने के बाद हमने गलती किया है, And it is the blood of Jesus Christ. And when we confess our sins, God cleanses us and washes us, forgives us because of the blood of Jesus. जब हम अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं तो यीशु मसीह का लहू जो है हमें अपने पापों से धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। Right? So to answer your question, they just have to confess and the Lord will forgive. तो आपका सवाल का जवाब देते हुए जो पाप किए उन्हें अपना पाप का अंगीकार करने की जरूरत है, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करेंगे। All right. We'll take more questions later. Let's move please to chapter 9. हम बाकी सवाल बाद में लेंगे, आइए हम पार्ट 9 में जाएं। I have skipped some pages in chapter 8. We will come and talk about it a little later. मैंने 8वें पार्ट के कुछ पन्नों को मैंने छोड़ दिया है, उसमें हम वापस आकर उसके बारे में बात करेंगे। In chapter 9, we are going to talk about culture. 9वां पार्ट में जो है हम जो है संस्कृति के बारे में बात करने जा रहे हैं। When we read the Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं we must understand and interpret we must interpret scripture, understanding the culture in which it was spoken. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें जो है किस संस्कृति में इस बात को बताई गई है इसको समझने की जरूरत है। So in the Bible, we will see that some instructions from God were temporary. It was only meant for a certain people at a certain time. बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर द्वारा जो है कुछ लोगों को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से कुछ चीजें बताई गई है। So that's temporary. वो जो है अस्थायी है। Example, yesterday we saw when God told Abraham, take your son and offer him as a sacrifice, it was given to only Abraham at that time, at that place. उदाहरण के लिए कल हम अब्राहम के बारे में देखे थे, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने बेटे को ले जाकर बलि चढ़ाना। ये बात जो है परमेश्वर को तब उस समय के लिए अब्राहम को दी गई थी। Right? It's not for everybody. ये सभी के लिए नहीं है। And it's not Abraham didn't every firstborn in his family say, come, I'll take you to the mountain. He didn't do that for every firstborn. या अब्राहम ने ऐसा नहीं किया कि अपने परिवार के सभी लोगों के पहलौठे को ले जाके बलिदान करने लगा। No. नहीं। Or when God told Moses, when Moses saw the burning bush, God said, Moses, take off your shoes because where you are is holy. या तो मूसा को जहाँ वो जलती हुई झाड़ी के पास था तो प्रभु ने कहा कि अपने जूते उतार दे क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो पवित्र स्थान है। Now we don't do that. No, I'm wearing my shoes. तो हम ऐसा नहीं करते, मैं अपना जूता पहना हूँ। So we don't practice that today. हम उसका आज जो है हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। Right? We can pray with our shoes. We can pray with our chappals. We can pray barefoot. However you want to pray. हम जो है अपने जूते के साथ, चप्पल के साथ या नंगे पैर कैसे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। Right? Now sometimes if somebody when they are feeling the presence of God and they want to take off their shoes as a sign of respect, that's okay. It's between them and God. या कोई ऐसा है कि परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि मेरा जूता उतारना है, तो अगर वो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, उनके ऊपर है। Yeah. So, but we don't make it a command. Moses took off his sandals. All of us take off your sandals. तो हम उसे एक आज्ञा के तौर पे नहीं कहते हैं कि मूसा ने अपना चप्पल को उतारा था, हाँ आप सबको हम सबको चप्पल उतारना है। So that instruction from God was given to a person, that is Moses, at a particular time. You do it like this.
और वो निर्देश जो है एक विशेष व्यक्ति जो मूसा के लिए उस समय के लिए दी गई थी। So there are many instructions in the Bible which we know are temporary. इसलिए बाइबल में जो है बहुत सारे ऐसे निर्देश हैं जो हम जानते हैं कि वो जो अस्थायी रूप से दी गई थी। So in the book in the English book on page 120, 121, there are many examples which are given which are temporary in nature. जो अस्थायी अभ्यास के रूप में जो हमारा हिंदी का पुस्तक 139 से लेकर आगे दिया गया है, किन किन बातें जो अस्थायी रूप से दी गई करके। Look at some examples. कुछ उदाहरणों को देखें। It's the alphabet G in English. I don't know what it is. Casting lots to make decisions. तो निर्णय लेने के लिए चिट्ठियां डालना, They practiced that in the Bible. वो बाइबल के समय में इसका उन्होंने अभ्यास किए थे। But today, when you and I want to make decisions, we don't do like throw and pick one. We don't do that. हमें अगर निर्णय लेने तो आज हम ऐसा नहीं करते हैं कि चिट्ठियां डालते हैं और उसमें से चुनते हैं। ये जो है आपका हिंदी के पुस्तक 140 पर है, 40 पर, और 9वां हिंदी में भी ऐसे ही जी करके ही दिया है। Right? So we don't do that. Today, when we want to make decision, we pray, we listen to God, we read His word, and we get godly counsel. आज हमें निर्णय लेना है तो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर का वचन लेते हैं और परमेश्वर का सुनते हैं, परमेश्वर से जो सलाह लेते हैं। Right? So we don't copy what they did in the Bible. हम जो बाइबल में उन्होंने जो किया था उसका नकल नहीं करते। We don't throw lots and pick up one thing. हम चिट्ठियां डालकर उसमें से एक नहीं उठाते हैं। How many of you, when you were planning to come to STBC, you made two papers? One paper said don't go, one paper said go. You threw it, then you picked it up. How many of you did that? आप में से कितने लोग एसटीबीसी आने से पहले चिट्ठी में लिख के डालें कि जाओ करके एक चिट्ठी डालें, नहीं जाओ करके डालें और उठाएं कि आपको क्या मिला? क्या आपने कभी ऐसा करके आए? कितने लोग? Nobody. किसी ने नहीं किया ऐसे। Right? You prayed, you asked maybe some people, and then you made the decision. आपने प्रार्थना की है, हो सकता है कि किसी से कुछ लोगों से पूछें, फिर उसके बाद अपने निर्णय लिए। Right? So we don't practice that. It's in the Bible or casting lots, but we don't practice this. ये बाइबल में है, चिट्ठियां डालने के बारे में उन्होंने अभ्यास किए थे, लेकिन हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। So that's one example. वो एक उदाहरण है। Or think about this. In the Old Testament, there is a rule. A woman will not wear anything that pertains to a man. Nor shall a man put on a woman's garment. और एक चीज है कि ऐसा वचन में लिखा है कि जो महिलाएं जो है पुरुष के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। And this is Deuteronomy 22 verses 5, 11 and 12. ये व्यवस्था विवरण 22 अध्याय में है। So Old Testament says, woman must not wear anything that if man wears, man must not wear anything woman wears. तो पुराना नियम में जो है स्त्रियां जो पहनती हैं वो पुरुष को नहीं पहनना है और पुरुष जो पहनते हैं उन्हें स्त्री को नहीं पहनना है। And in some parts of the world, and we're talking about in the United Kingdom, men wear like skirts like things. They wear that. तो कुछ जगह में जैसे यूनाइटेड किंगडम वगैरह में जो है, जो पुरुष जो है स्त्रियां पहनते जैसे स्कर्ट पहनते हैं उस प्रकार का पहनते हैं। That is their dress. वो उनका वस्त्र है। But that's their culture. वो उनका संस्कृति है। The point is, this is an instruction in the Old Testament. When you come into the New Testament only tells us dress modestly. ये पुराना नियम का निर्देश है। जब नया नियम में आता है तो नया नियम हमें केवल ये बताता है कि हमें शालीनता से कपड़े पहनने की जरूरत है। Right? So we don't take that Old Testament scripture and put it on New Testament believers. हम जो है पुराना नियम के उन निर्देशों को लेकर नया नियम के विश्वासियों पर तोपते नहीं है। Or about priests. Yeah. It says you must not wear anything that causes you to sweat. और याजकों के लिए आपको ऐसे कोई भी कपड़े नहीं पहने हैं जो आपका पसीना आए। Now New Testament we are all priests. और नया नियम में हम सब याजक हैं। But if you're in North India, doesn't matter what you wear, you will still sweat, right?
यदि आप उत्तर भारत में हैं, आप क्या पहन रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पसीना आएगी। right? Or sometimes even in South India, like when it gets very hot, doesn't matter what you wear, you'll still sweat. और दक्षिण भारत में भी आप क्या पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब गर्मी ज्यादा रहती है तो पसीना आती है। But in the Old Testament, there is a rule. A priest who comes into the temple must not have any sweat. तो लेकिन पुराना नियम में ऐसा नियम था, जो याजक जो मंदिर में आते हैं उन्हें पसीना नहीं बहाना चाहिए। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? So we can't apply that rule to all of us because then none of us can worship God. तो वो नियम लेकर हम सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते, तो ऐसा है तो हम में से कोई भी आराधना नहीं कर सकते हैं। Because sometimes in this room itself you start sweating. क्योंकि कभी कभी क्या इस कमरे में भी हमारे पसीना आने लग जाता है। I understand. आप समझ रहे हैं? So there are things in the Bible that was only given to a certain people in a certain context. It's only for them. It's not applicable today. तो इसलिए बाइबल में जो है कुछ लोगों के लिए, कुछ समय के लिए, उनके लिए उस समय के लिए दी गई है, जो आज के लिए नहीं है। So there are many instructions like that. कई सारे ऐसे निर्देश हैं। Then secondly, there are things which are permanent in nature. और दूसरी जो है स्थायी स्वभाव के हैं। That means it was given some time and we continue to practice it today. जिसके मतलब है वो जो पहले वो निर्देश दी गई थी, वो लगातार आज भी हम उसका अभ्यास करते हैं। Because nowhere in the Bible do we find that practice changed or withdrawn. क्योंकि बाइबल में उस निर्देश के बारे में कहीं भी बदला नहीं है, या तो उसको हटा दिया नहीं गया है। Think about this, meditating in God's word. इसके बारे में सोचिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना। It was given in the Old Testament. ये पुराने नियम में दिया गया है। But even in the New Testament, we continue to meditate in God's word. हम नया नियम में भी लगातार हम परमेश्वर का वचन का मनन करते हैं। Because nowhere in the New Testament God says stop meditating. क्योंकि नया नियम में कहीं भी परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम मनन करना बंद कर दो। Or think about using musical instruments. या तो इसके बारे में सोचिए कि वाद्य यंत्रों का उपयोग करने के बारे में। This is an interesting thing. ये बहुत ही रुचिपूर्ण बात है। In the New Testament, नया नियम में all the way till the book of Revelation, there is no mention of worshiping God with instruments. तो नया नियम में जो है प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया कि वाद्य यंत्रों के द्वारा आराधना करने के बारे में। Right? And because of that, some people say, oh, you must not use instruments when you're worshiping God. इसी के कारण लोग कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। How will you answer to that? आप उनके कैसे जवाब देंगे? Suppose somebody says, ऐसा ले लीजिए, कोई कहते हैं in the New Testament, there is no mention of using instruments to worship God. नया नियम में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि आप वाद्य यंत्रों को इस्तेमाल कर सकते हैं करके। So why are you using instruments? तो आप क्यों वाद्य यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं? I'm asking you questions. मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, How will you answer? आप कैसे इसका जवाब देंगे? What will you say? आप कैसे बताएंगे? Sit wholeheartedly, with your might, and you worship the Lord. Yeah, worship wholeheartedly. But, they will say in the New Testament, there is no chapter and verse about using instruments. So why you are using instruments? वो बोलेंगे कि नया नियम में कोई भी ऐसा अध्याय नहीं है, वचन नहीं है वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके आराधना करने के बारे में, तो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्या जवाब देंगे? So first, सबसे पहले in the Old Testament, many times, the Bible is telling us to worship God with instruments. क्योंकि पुराना नियम में बाइबल जो है बाहर पर कई जगह में बता रही है कि वाद्य यंत्रों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। Many times, especially in the book of Psalms, it says, play skillfully on your instrument, make a loud noise to God.
तो खास करके भजन संहिता में परमेश्वर का वचन में बार बार बोला गया है कि आप अपने यंत्रों को अच्छी तरह से बजाएं और परमेश्वर के लिए जय जयकार की ध्वनि उठाएं। Right? So we know in the Old Testament very clear that we can worship God with instruments. इसलिए हम जानते हैं कि पुराना नियम में ये बात बहुत ही स्पष्ट है, हम परमेश्वर को वाद्य यंत्रों के द्वारा आराधना कर सकते हैं। In the New Testament, there is no command, no instruction that says you should not worship with instruments. नया नियम में हमें हमारे लिए कोई निर्देश या आज्ञा ऐसा नहीं दिया गया कि आपको वाद्य यंत्रों को इस्तेमाल कर कर या आराधना नहीं करना चाहिए। That means what God has given continues. इसके मतलब जो है परमेश्वर ने जो पहला दिया है पुराना नियम में वो लगातार जारी रहेगी। And then in heaven, they have instruments. और साथ ही साथ स्वर्ग में जो है उनके पास वाद्य यंत्र है। कैसे मालूम है? Revelation. So let us, प्रकाशित वाक्य, we go to Revelation chapter 5 प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 and verse 8. 8वां वचन, प्रकाशित वाक्य 5 वचन 8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणियां और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनसे हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। So do they have instruments in heaven? क्या स्वर्ग में उनके पास वाद्य यंत्र है? They are playing on the harp. वे वीणा बजा रहे थे। So if they have instruments in heaven, that means God is okay with instruments. उनके पास स्वर्ग में वाद्य यंत्र है, इसलिए परमेश्वर वाद्य यंत्रों से मानता है। Right? So we use instruments today because one, it is given in the Old Testament. In the New Testament, it is nowhere said you should not use instruments. And we see that in heaven, they are worshiping God with instruments. यहाँ हम देखते हैं कि पुराना नियम में वो दिया गया वाद्य यंत्रों इस्तेमाल करने के बारे में, और नया नियम में कहीं भी इसकी मना नहीं की है। और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि स्वर्ग में वीणा बजाई जा रही है। Right? Yeah, there's one more place if we get to it. Just, anyway. So this is how we respond. इस प्रकार से हम इसका प्रत्युत्तर देते हैं। So what are we saying? There are commands that God gave to people which are temporary. तो हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर जो है कुछ निर्देश ऐसे दिए थे जो है अस्थायी थी। There are instructions that God gave which continue even till today. तो कुछ ऐसे निर्देश हैं परमेश्वर ने दी, आज भी वो जारी है। And then there are instructions, the third one. There are instructions where the practice is temporary, but the principle continues. और तीसरी बात आपका पेज 144 पर है, जो अभ्यास जो है अस्थायी है लेकिन उसका सिद्धांत जो है निरंतर है। For example, उदाहरण के लिए the Sabbath day. सब्त का दिन को मानना। In the Old Testament, the seventh day was the Sabbath day. They had to observe it. The seventh day, Saturday. तो विश्राम का दिन का मनाना जो है उस समय जो है 7वां दिन विश्राम दिन करके मनाना था उन्हें। When we come to the New Testament, जब नया नियम में आते हैं it changes. वो बदलता है। We don't practice the keeping of the Sabbath, but we practice rest and worship. हम जो है वो विश्राम दिन को या शब्द दिन को मनाने का अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन हम जो है विश्राम और आराधना का पालन करते हैं। In the New Testament, and as New Testament believers, many believers worship on a Sunday. एक नए नियम के विश्वासी होने के नाते कई सारे विश्वासी जो है रविवार के दिन आराधना करते हैं। Some parts of the world, they worship on Friday. संसार के कुछ भागों में जो है वे जो है शुक्रवार को आराधना करते हैं। Some people may worship on Tuesday. कुछ लोग जो है मंगलवार को आराधना कर सकते हैं। It's okay. ठीक है। In Romans, the 14th chapter, it says, you choose whatever day you want. रोमियो 14 अध्याय ऐसा बताता है कि जो भी दिन आपको चाहिए आप चुन सकते हैं। Right? So we observe the principle, which is rest and worship.
जो अगर इसका सिद्धांत को हम देखेंगे कि जो आराधना का बताती है, but we don't observe the exact practice of the Sabbath, that is the seventh day. लेकिन वो जो जो उसका सही सटीक जो 7वां दिन सबको दिन मनाते हैं, उसका हम अभ्यास नहीं करते हैं। You understanding? आप समझ रहे हैं? Yes? Okay, bell rang, we'll take a break, we'll come back, we'll continue this. बेल बज गई, हम ब्रेक लेंगे, फिर वापस आकर हम जारी रखेंगे। Thank you.